Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Taurus Ascendant and the predictions for the month of April 2023. Venus is the ascendant lord for you and it is going to occupy your first house from 6th of April to 1st of May. The ascendant lord in ascendant is an exceptionally good position for you because it is going to produce a double fold opportunity for you. First of all, you will be able to buy a luxurious product for yourself, something that you have been planning to buy from a very long time. And its seventh aspect on the house of marriage would mean that all those people who are single and have been waiting to get married, they will be able to get that opportunity in transit in the month of April. Venus also happens to be the sixth house lord for you, and sixth house showcases all kind of a disputes and conflicts, and its lord in the first house would mean that you should avoid getting into any kind of an argument between 6th of April to 1st of May, because you may find yourself in these kind of a situations when Venus comes into the first house during the transit. You also need to maintain a strict routine and consume a balanced diet. Taurus ascendant people have a problem that they are unable to stop themselves when it comes to enjoyment. They enjoy much more than their capacity, and as a result, they fall ill. So, this is something that you need to be careful about in the month of April. Sixth house also showcases services and jobs, and again, its lord in the first house would mean that you need to work on your personality and build a positive image on the work front. The best dates for you to excel in jobs is between 8th to 12th of April. During the month of April, the best time that you can spend with your spouse is at the beginning of the month from 1st and 2nd of April. Mercury is the lord of 2nd and 5th house for you, and both the houses are benefic for your chart. Mercury is going to remain stationed in your 12th house from 31st of March to 7th of June, which is a fairly long time frame. In this month, there is also an exchange between the second and the 12th house lord. So 12th house lord Mars is going to be in the second house, and second house lord Mercury is going to be in the 12th house. Since one of the houses involved is a difficult house, how you utilize this house is the key for you during the time both these planets are placed here. So you can actually engage yourself in charities by donating money and make small investment. You can also spend money on a foreign travel. You can think of going to a foreign country along with your family. This is a great way to utilize this kind of a placement. Venus is also the natural significator of luxury and money, so you will see a good cash flow in this month, especially between 21st and 23rd of April. Since Mercury also owns the fifth house, the fifth house lord placement in the 12th house would mean that students, if they are planning to go to an abroad country for education, then this time frame is fairly good for them. Especially the duration between 6th to 14th of April is going to be very helpful for them in pursuing any such kind of activities. If you happen to be in the stock market, then the time frame from 11th to 14th of April is very good for you. Sun is going to move into the 12th house on 14th of April, and it is going to stay here till 14th of May. This is a great time for you if you are practicing meditation or any other spiritual exercise, as it will help you get peace of mind in isolation. Since the 12th house lord also showcases isolation, so this is one of the best ways to address this tricky placement of sun. If you're planning to settle abroad, then again this month provides you an opportunity for you to settle abroad. So both the students get an opportunity to get admission in the universities or pursue their dream of studying in a foreign country, and people who are looking for a permanent residence, they also get a chance. The significators of the two are different. For the earlier one, the significator is Mercury. People who want to settle down, the significator is going to be Sun in this month. But this is also not a month to buy a property. So if you're planning to buy one, you should hold on to any such transaction at least in the month of April. If you do it, it will not prove to be beneficial for you. Mars is stationed in the second house of self-earned wealth, family and speech, and it is going to stay here till 4th of May. So Mars, wherever sign it occupies, it introduces aggression in the significations that are indicated by that house. So your speech is going to be very explosive, and you should avoid taking any kind of arguments with your family to the next level. Otherwise, this aggressive approach is going to backfire on you.
Jupiter and Rahu will get combined in your 12th house in the month of May and June. Since we are talking about April, I'm not going to discuss it in detail this time around. But this kind of a combination results in extramarital affair, and especially in the month of May and June, you should avoid getting into a room alone with the opposite gender. Now, every month I also talk about the dates where you need to remain cautious and avoid taking any key decisions. So the dates for you in the month of April are 7th and 8th of April, 12th and 13th of April, and 20th and 21st of April. Avoid taking any key decisions during these 6 days. Overall, the ascendant lord in the first house itself is a great combination for you. So this is how the month of April is going to turn out for you. I would request you to subscribe to my channel if you have liked this video, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृषभ लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लग्नेश की बात करते हैं तो लग्नेश शुक्र यहाँ पर लग्न स्थान में ही आ जाएंगे। ये यहाँ पे 6 अप्रैल से लेके 1 मई तक विराजमान रहेंगे। तो शुक्र का लग्न स्थान में बैठना अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है, और यहाँ पे तो ये स्वयं लग्नेश हैं। तो जितने भी आप लोगों में से काफी लंबे समय से कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे होंगे, ये हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बड़ी गाड़ी पसंद आती है, कुछ लोगों को बहुत हाई फैशनेबल कपड़े पसंद आते हैं। तो जो भी आपकी पसंद का ऐसा आइटम है जो आप खरीदना चाह रहे थे, वो आप 6 अप्रैल से 1 मई के बीच में खरीद सकते हैं। ये शुक्र चूंकि स्वयं ही लग्जरी का कारक है, तो फाइनेंशियली भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 21-22 से लेके 23 अप्रैल तक का समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा पैसे की दृष्टि के हिसाब से। शुक्र आपके छठवें भाव के भी स्वामी बनते हैं। छठवें भाव से आप लड़ाई झगड़ा वगैरह देखते हैं, बीमारियां देखते हैं। तो छठवें भाव के स्वामी का प्रथम भाव में जाना, यानी कि लोग आपसे झगड़ा करने पे उतारू हो जाएंगे अप्रैल के महीने में, और आपको कैसे भी करके उनके साथ झगड़े में पड़ने से बचना है, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ऐसी स्थिति में जब छठवें भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाता है, तो आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वृषभ लग्न के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मौज मस्ती में इतने लिप्त हो जाते हैं कि इनको कहाँ रुकना है, ये कभी एक सीमा रेखा नहीं ड्रॉ कर पाते, और जो अति सेवन की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं वो सब इन लोगों को होती हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा और एक स्ट्रिक्ट रूटीन बना के रखना पड़ेगा अप्रैल में, नहीं तो फिर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन छठवें भाव के स्वामी का प्रथम भाव में जाना व्यक्ति को बीमार करता है। इसके अलावा छठवें भाव से आप लोगों का नौकरी पेशा या सर्विस क्लास को देखते हैं, तो इनके लिए ये महीने में जो चीज इनको करनी है वो ये कि इनको अपना पर्सनालिटी डेवलप करने पे ध्यान देना पड़ेगा और अपनी एक पॉजिटिव छवि बनानी पड़ेगी अपने कार्यस्थल पे। इस महीने में अगर इनको जॉब फ्रंट पे अच्छा करना है, तो अगर हम अप्रैल महीने की बात करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए 8 से 12 अप्रैल तक का समय सबसे बढ़िया समय है। और अगर आप इस महीने में अपने पति या पत्नी के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो महीने की शुरुआत यानी 1 और 2 अप्रैल, ये 2 दिन आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए। अभी एक एक करके बाकी ग्रहों को भी देखते हैं। बुध द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी बनता है और ये 12वें भाव में जाके बैठ गया है। 31 मार्च से लेकर 7 जून तक बुध यहीं बैठा रहेगा। यहाँ पर एक जो बात हो रही है वो ये है कि द्वितीयेश और द्वादशेश का आपस में स्थान परिवर्तन हो रहा है। मंगल बुध की राशि में और बुध मंगल की राशि में जाके बैठ गए हैं। तो आपको अगर इस महीने में फाइनेंशियली अच्छा करना है, तो आपको पैसा डोनेट करना पड़ेगा चैरिटीज को। ये इस तरह का प्लेसमेंट फॉरेन से इनकम भी दिखाता है और आपके पैसे का व्यय भी दिखाता है। तो या तो आप कहीं फॉरेन ट्रिप पे चले जाइए अपने फैमिली को लेके, तो वहां पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन सबसे जो अच्छा इस प्लेसमेंट को यूटिलाइज करने का तरीका है कि आप अपने को आपको चैरिटीज में एंगेज कीजिए, पैसा डोनेट कीजिए अच्छे कॉजेस के लिए। ये लॉन्गर टर्म में आपके लिए और अच्छा से वापस आएगा जो आप अभी डोनेट करते हैं वो अमाउंट। 12वें घर से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं, तो वो भी आप इस समय में कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए 6 से 14 अप्रैल का समय सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव का भी स्वामी बनता है। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स को भी देखते हैं और शेयर बाजार वाले लोगों को भी देखते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो 11 से 14 अप्रैल तक का समय आपके लिए सबसे अच्छा है मुनाफा कमाने की दृष्टि से। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो 6 से 14 अप्रैल का समय सबसे अच्छा रहेगा। अभी सूर्य भी आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। 14 अप्रैल से 14 मई तक के समय में सूर्य महाराज 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो अगर आप किसी भी तरह का मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
अप्रैल के महीने में, चूंकि शुक्र आपके चूंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो चतुर्थ भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना यानी कि अकेलापन दिखाना, घर में रह के भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, घर के मेंबर्स से भी बिल्कुल वो कटा रहता है इस समय में। तो अगर आप मेडिटेशन में हैं, स्पिरिचुअलिटी में, तो ये बहुत अच्छा समय है यहाँ पर। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो फिर आप अप्रैल के महीने में इस तरह का कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर खरीदने का मौका भी है तो उसको भी टाल दीजिए। ये इस तरह की प्लेसमेंट, चतुर्थेश का 12वें भाव में जाना, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों का डिस्ट्रक्शन ही कह लीजिए आप। और 8 अप्रैल के बाद तो गुरु भी वापस 12वें भाव में आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टी का जो कारक है वो फिर से 12वें भाव में चला जाएगा। तो कुल मिला के अच्छा समय नहीं है प्रॉपर्टी की खरीदारी की दृष्टि से। अभी मंगल आपके द्वितीय भाव में ही बैठे रहेंगे। मंगल जहां भी जाते हैं तो अपने भाव में वो एक ऊर्जा लेके आते हैं, एक अग्रेशन लेकर आते हैं। तो आपके यहाँ पर स्पीच में अग्रेशन आ जाएगा और आपके फैमिली मेंबर्स आप जो बोल रहे हैं उससे बहुत उनको हर्ट होगा। तो अगर आप कोई भी अग्रेशन लाते हैं स्पीच में तो ये आपके ऊपर बैकफायर करेगा। तो अपने परिवार वालों के साथ जब भी आप बात करें तो सोच समझ कर बात कीजिए अप्रैल के महीने में। गुरु की युति बनेगी राहु के साथ मई और जून के महीने में। चूंकि ये प्रिडिक्शन अप्रैल का है तो मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी तरह के आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सावधान रहिए मई और जून के महीने में। अगर आपको किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ एक रूम में जाना पड़े, चाहे वो आपके घर की बात हो या कंपनीज में जहां भी आप काम करते हैं वहां की, तो इस सिनारियो को आप टालिए। ये अच्छा सिनारियो नहीं रहेगा, खास करके मई और जून के महीने में। तो किसी भी तरह का अगर आपको इंटरेक्शन करना है तो पब्लिक स्पेसेस में कीजिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। अब अप्रैल के महीने में जिन दिनों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना है वो दिन है 7 और 8 अप्रैल, 12 और 13 अप्रैल और 20 और 21 अप्रैल। इन 6 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना आप टालिए। आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो प्लैनेट्स का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। देखिए लग्नेश लग्न में ही बहुत अच्छी स्थिति है और शनि भी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। और ये जो एक्सचेंज आपका हो रहा है मंगल और बुध का, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आप चैरिटीज वगैरह में एंगेज होते हैं, कहीं फॉरेन ट्रिप वगैरह करते हैं, तो आपके लिए पैसा सही जगहों पे खर्च होगा। नहीं तो फिर वो अपनी एक लॉस की फॉर्म में आपको चोट पहुंचाएगा फाइनेंशियली। तो आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।